is going on. Absolutely. Thank you so much, Ajay, for all those updates on that story. We're shifting focus now towards the air quality in the National Capital Region. The air quality index of Delhi and its adjoining areas has once again fallen into the severe category, with residents complaining of shortness of breath, sore throat, burning sensation in the eyes, among other discomforts. Considering the worsening situation, the Delhi government has invoked the Graded Response Action Plan Stage 4, under which all government and private schools in Delhi have been ordered to remain shut till further notice. This directive has been issued for students who are enrolled in nursery till class 5, and in addition classes from 6th to 11th are operating in hybrid mode, while high school and intermediate students have to attend physical classes due to the upcoming board exams. Furthermore, all government and private offices have been directed to operate at 50% capacity and give work from home to the remaining 50%. In fact, let's take a look at what the current AQI is in various parts of the National Capital Region. This is a live AQI tracker that you are seeing on your screens. The red circles indicate very severe quality and the purple circles indicate a moderate poor quality of air. So, total average AQI over here you can see 394 for Delhi NCR region. Now, if we go and zoom in to central Delhi, over here you will see the India Gate region has an AQI of 402, 385 near Pragati Maidan. And if we look at the lungs of the national capital, which is the reserve ridge forest areas, we will still see an AQI of 382, 381, 369. These are all above 350. Let's in fact also go across to Ghaziabad, which has been seeing severe air quality. So, on your screens right now, Ghaziabad 409, 406, we are seeing 447. So, again all above the 350 mark. If we look at Noida as well, that's the same situation in Noida. In Noida sector, in the Knowledge Park, the air quality is 421 and 398. So, clearly on your screens you can clearly see how all of these are still. So, in Gurgaon, which is where a lot of people are actually going to work, staying there. Now, since GRAP 4 measures have been implemented, there's 50% less traffic on the road of office goers because they can work from home, but still the air quality remains above 350. So, in various areas, Shashant Lok 378, in Sikandarpur 362, 349 in main Gurgaon area. So, you can see that all of these are above the 350 mark, and hence the air quality. Now, you can see the average air quality in Delhi is above 350. Let's also take a look at the fire situation in northern India. So, this is Delhi for you over here, and the number of fire incidents has been recorded through these red dots that you can see on your screens, and this is Haryana and Punjab. Obviously, as compared to previous months and obviously compared to previous weeks, we are seeing a reduction in the number of farm fires. So, those red dots have reduced a lot, and hence these cannot now be a contributing factor to the worsening air quality over here, but there are still you can see these red dots over here. These amount to a number of fires in that specific region, and over here it affects the air quality in Delhi as well. Now, joining us on the broadcast are my colleagues who are joining us from various places across the Delhi NCR region in order to give you a ground update on what the situation is like. Bhavna Sisodia is joining us from Delhi and Ali Khan from Noida. Bhavna, if I can come across to you first, what is the situation on the ground
अभी तो ग्रैप 4 मेजर्स इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, तो ग्राउंड पे कैसी सिचुएशन है? क्या गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट कर पा रही है? और जो एयर क्वालिटी है क्या वो ठीक हो पा रही है, या लोगों को अभी भी सफ़र करना पड़ रहा है? जी देखिए, अगर दिल्ली की आबो हवा की बात की जाए तो दिल्ली की आबो हवा जो है वो बेहद ही खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में ग्रैप 4 के नियमों को लागू किया गया है, तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक्यूआई लेवल की बात की जाए तो एक्यूआई लेवल लगातार 400 के आसपास बना हुआ है। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि जिनके पास पीयूसी नहीं मिलेगा उनको पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा, और BS6 से कम के वाहनों पर जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। क्योंकि दिल्ली में अगर एक्यूआई का लेवल बढ़ता है तो अनुमान उसका जो कारण है वो ट्रैफिक को देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं उस ट्रैफिक को देखते हुए जो है सरकार द्वारा अब प्रतिबंध लगाया गया है। साफ तौर पे ये कहा गया है कि BS6 से कम वाहनों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। और दिल्ली के परिवहन मंत्री मरजिंदर सिंह सिरसा ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जहां BS6 से कम वाहनों पर प्रतिबंध है, वहीं जिनके पास पॉल्यूशन नहीं मिलेगा, पीयूसी जो नहीं मिलेगा वाहनों को, उनको पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। साफ तौर पे ये कहा गया। देखा जाए तो दिल्ली की आबोहवा जिस तरीके से खराब श्रेणी में पहुंच रही है, दिल्ली वालों की सेहत के ऊपर साफ तौर पे असर डालती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं तमाम प्रतिबंध जिस तरीके से लगाए गए हैं, उसके बाद जिस तरीके से आबोहवा खराब नहीं हो, आबोहवा ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, तो साफ तौर पे अब विपक्ष भी पूरी तरीके से सरकार के ऊपर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जाए तो जहां ग्रैप 4 के नियम लागू किए गए हैं, तमाम चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनकी निगरानी के लिए टीमों का गठन भी किया गया है। दिल्ली में तमाम जगहों पर वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन काम कर रही है, एंटी स्मोक गन बड़ी बड़ी इमारतों पर लगाई गई है, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है, जो कि एक दिल्ली वालों के साथ साथ दिल्ली वालों की दिल्ली की जो जनता है उसकी सेहत के ऊपर खास तौर से असर डालता हुआ नजर आ रहा है। इस हॉस्पिटलों में बात की जाए तो जहां मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये बढ़ता एक्यूआई लगातार हानिकारक होता जा रहा है। देखना यही होगा कि तमाम प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी दिल्ली का जो एक्यूआई लेवल है उसमें कब सुधार होता है। क्योंकि देखा जाए तो जहां एक तरफ मौसम करवट ले चुका है, सुबह सुबह के समय देखा जाए तो पूरी दिल्ली एक फॉग और स्मोक की चपेट में होती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सर्दी से लोग इतने परेशान होते नजर नहीं आ रहे हैं। विजिबिलिटी कम होने की वजह से थोड़ी बहुत वाहन चालकों को परेशानी है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान दिल्ली वाले दिल्ली के एक्यूआई से होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि बढ़ता एक्यूआई लेवल जहां सांस लेने में परेशानी साबित हो रहा है, वहीं आंखों में जलन का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। और लंबे समय से जिस तरीके से एक्यूआई लेवल लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है, इसकी वजह से अब लोग गंभीर बीमारियों का भी शिकार होते नजर आ रहे हैं। एक्सपर्ट की बात की जाए तो एक्सपर्ट साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि दिल्ली छोड़ दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉसिबल होता नजर नहीं आ रहा है। कब दिल्ली वाले भी चिंतित होते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार आबोहवा कब सामान्य होगी, कब जाके दिल्ली वालों को साफ और शुद्ध हवा मिलेगी, ताकि जो गंभीर बीमारियों का शिकार बच्चे बुजुर्ग होते जा रहे हैं वो ना हो। अगर स्कूलों की बात की जाए तो जहां स्कूल हाइब्रिड मोड पर डाले गए हैं, वहीं अभिभावक भी बड़ी क्लासेस के जो अभिभावक हैं वो भी चिंतित होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि छठी से 12वीं तक के स्कूल जो लगातार जारी हैं, कहीं ना कहीं उन बच्चों की सेहत के ऊपर भी असर देखने को मिल रहा है। तो अब इंतजार कर रही है दिल्ली और दिल्ली की जनता की आखिरकार दिल्ली को कब साफ और शुद्ध हवा मिलेगी। Exactly. In fact, let me also go across to Ali Khan, who is joining us from Noida. अली, वहाँ पर क्या अभी सिचुएशन है? आप हमें रोज़ बताते हैं कि गवर्नमेंट के कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं, तो ग्रैप 4 के मेजर्स जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उससे कुछ फ़र्क आ रहा है? बिल्कुल। कल से अगर बात करें तो कुछ तेज हवाएं चली हैं, तो हवाओं की वजह से कुछ तो एक्यूआई में सुधार देखने को मिला है। क्योंकि आज अगर नोएडा के एक्यूआई की बात करें तो 316 के आसपास बना हुआ है, जो पुअर कंडीशन में, पर पहले से कुछ बेहतर है। जो 450 और 500 के आसपास का एक्यूआई था उससे कुछ राहत मिली है। 316 के आसपास का एक्यूआई अभी नोएडा में दर्ज किया जा रहा है, जो एवरेज एक्यूआई है। वहीं अलग अलग जगहों की बात करें तो कहीं 400 के आसपास अभी भी एक्यूआई बना हुआ है, पर आज एवरेज एक्यूआई नोएडा का 316 है, जो बेहद पहले की स्थिति से बेहद खराब स्थिति थी। कुछ स्थिति बेहतर हुई है क्योंकि हवाओं का रुख बदला है, हवाओं की गति बढ़ी है, जिसकी वजह से आज एक्यूआई में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। वहीं अगर ग्रैप 4 के नियमों की बात करें तो तमाम नियमों को धरातल पर उतारने की बात तो की जा रही है। तमाम ऐसे नियम बनाए गए हैं, तमाम 50% वर्क फ्रॉम होम की तरफ भी नोएडा चल चुका है। उधर लोगों से बातचीत की जा रही है। तमाम की जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं, सरकारी दफ्तर हैं, उनमें 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम दिया जाए। वहीं जितने भी स्कूल्स हैं उन्हें भी हाइब्रिड मोड पे चलाने के लिए बोल दिया गया है। पर कहीं ना कहीं ग्रैप 2 के और जो बाकी नियम हैं, जिसमें कोयले तंदूर चलते हैं, जो कोयले वायले उन्हें जलाने की बात कही जा रही हो, जो नियम कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो भी, वो तमाम ऐसी चीजें हैं जो धल्ले से अभी भी चल रही हैं, जिन्हें रोकने के काम नोएडा अथॉरिटी का है, वो कहीं ना कहीं उसे रोकने में नाकाम नजर आ रही है।
वो अभी भी ऐसे ही धड़ल्ले से सड़कों पे धूल उड़ाई जा रही है। वाटर स्प्रिंकलिंग, मैकेनिकल स्वीपिंग की बात नोएडा अथॉरिटी करती है, पर वो भी कहीं ना कहीं होती हुई नजर नहीं आ रही है। साफ तौर पे वहां पे वाटर स्प्रिंकलिंग जिस तरह से हो रही है वो व्यापक रूप से उतनी नहीं हो रही है जितनी प्रेस नोट्स में जारी की जाती है। प्रेस नोट्स में रोज बताया जाता है कि कई सौ किलोमीटर की सड़कों पे रोजाना वाटर स्प्रिंकलिंग और मैकेनिकल स्वीपिंग की जा रही है, पर धरातल पे उतना नजर नहीं आ रहा है, जिससे वजह से नोएडा के एक्यूआई में इन मेजर्स की वजह से कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जैसे जैसे हवा का बदलता है, हवा की गति बढ़ती है, कुछ सुधार आता है, पर जैसे ही हवा की गति, हवा का दबाव कम होता है, ये एक्यूआई खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है। तो नोएडा वासी अभी भी परेशान नजर आ रहे हैं। पूरा दिल्ली एनसीआर में खासा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आंखों में जलन, गले में खराश, इस ऐसी तमाम दिक्कतें, छोटी छोटी दिक्कतें हर किसी को हो रही हैं। जुकाम, खांसी, नजला, ऐसी तमाम परेशानियों के साथ लगातार जो ओपीडी है इस टाइम भरी हुई नजर आ रही हैं। जो पहले के मुकाबले 30% ज्यादा मरीज इस टाइम जिला अस्पतालों और अन्य ओपीडीओ में नजर आ रहा है। तो बेहद खराब स्थिति अभी भी दिल्ली एनसीआर की बनी हुई है। लोगों को सांस लेने में बेहद परेशानी, ये जहरीली हवा इनहेल कर रहे हैं। वहीं तमाम डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट हैं उनका कहना है कि इस हवा को लंबे समय तक इनहेल करने से बड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसमें कार्डियक अरेस्ट, लंग कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी 10 गुना ज्यादा बढ़ सकता है। तो बेहद खतरनाक स्थिति में अभी भी दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई बना हुआ है, जिससे लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। जी, इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगी अपने सहयोगियों